اللہ نے جو تمہیں کامیابی دی، اللہ نے تمہارے علاقوں کو، گجرات کے خصوصاً اس علاقے کو، اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہار جہاں جو آپ کو دی ہے اس علاقوں میں، اللہ نے ہر اعتبار سے ہمیں جو نوازا ہے، مانو یا نہ مانو، ہماری ان بڑے بوڑھوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں لگایا، اپنے آپ کو مساجد اور مدارس سے، دعوت و تبلیغ سے اور خانقاہوں سے وابستہ کیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج گجرات کے ان علاقوں کو اللہ نے جو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک عظیم چیز یہ ہے کہ ہم نے گھر گھر سے حفاظ اور علماء پیدا کر۔ آج اس میں جو کمیاں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو حافظ اور عالم بناؤں، کہ آپ بھول گئے یہی بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کی جن اولادوں کو استعمال کیا ہے، یہ آپ کی اور آپ کے خاندان کے نہیں بلکہ ملک کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بلکہ یہ بچہ اس لیے کہ ہماری فیکٹریوں کی، ہماری دکانوں کی، ہمارے کارخانوں کی حفاظت کے بچے یہ حافظ بچے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا، تو کیا ایک حافظ قرآن جب دنیا میں باقی رہے گا، جب قرآن کا ایک لفظ اللہ جب باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا، تو قرآن کریم جب باقی رہے گا ان بچوں کے سینوں میں، جس کی بنیاد پر اللہ سورج اور چاند کا، زمین اور آسمان کا، بارش کا، یہ سارے نظام کو اللہ چلاتے رہیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے، یہ پوری دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ہم اس کو بہت سمجھ رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو علمی میدان دیں۔ ہم اپنے بچوں، اگر اللہ نے 2 3 4 بچے لیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ایک بچے کو تو آپ حافظ بنائیں، ایک بچے کو تو آپ عالم بنائیں، ایک بچے کو بھی آپ دین کا داعی بنائیں۔ میں ضرور کہتا ہوں آپ لوئر اور اکاؤنٹر اور انجینئر بنائیے۔ اگر ایک بچے سے آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہوگا تو ایک بچے کے ذریعے سے آپ کی جنت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اور دنیاوی ایجوکیشن کے باب میں بہت شوق میں بات کرنا، دنیاوی ایجوکیشن کے باب میں آج مسلمانوں کی جو کمزوری ہے ہم سب کے سامنے کھلی ہوئی۔ آج دنیا کی ساری قومیں سوائے مسلمان کے، دنیا کی ساری قومیں آج تعلیمی میدان میں آگے ہیں سوائے مسلمان۔ آج عیسائیوں کے یہاں دیکھیے ایسی بڑی بڑی اسکولیں اور کالجیں قائم کر رہے ہیں اور اپنے غریب بچوں کو فری آف چارج تعلیم دے رہے ہیں، فری آف چارج۔ آج مسلمانوں کے ایسے ادارے گنے چنے آپ کو ملیں گے شاید کہ ہمارے غریب بچوں کے لیے فری آف چارج تعلیم کا جہاں انتظام ہو۔ آپ دیکھیے سوائے عیسائیوں کے یہاں آج ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں اور اپنے غریب اور نادار بچوں کو فری آف چارج تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں کر رہے۔ آج ہمارے بچوں، ہمارے پاس کتنے ایسے ادارے ہیں۔ آج ہمارے علامہ اقبال جس وقت یوروپ گئے، علامہ اقبال نے یوروپ میں جا کر ایک پارک میں جا کر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ علامہ اقبال نے جب ان بچوں کو دیکھا، دیکھتے رہے، ایک بچے کو دیکھا کہ ایک کوہنے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے پارک۔ علامہ اقبال فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں اس بچے کے پاس چلا گیا کہ یہ بچوں کی تو فطرت ہے کھیلنے کی، ایک بچہ ایک طرف بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں نے اس بچے کے پاس جا کر پوچھا کہ بچے تو بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہے، تو تعلیم حاصل کرنے کی فکر میں پڑا ہوا ہے؟ اس بچے کا جو جواب ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل چکی، میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس بچے نے جواب دیا میری قوم دنیا میں مٹھی بھر کر ہے، بس مٹھی بھر قوم ہے، بہت مختصر قوم ہے میری۔ اگر میں بھی ان بچوں کی طرح کھیلتا رہوں گا،
अगर मैं भी इन बच्चों की तरफ खोलता रहूंगा, मेरी कौम मिट जाएगी, मेरी कौम ज़ाये हो जाएगी, मेरी कौम खत्म हो जाएगी। अल्लामा इकबाल ने दूसरा सवाल किया कि तू कौन सी कौम का बच्चा है? कहा मैं यहूद हूं, मैं कौम यहूद का बच्चा हूं। मेरी कौम मुट्ठी भर करे दुनिया में, अगर मैं भी इन बच्चों की तरह खोलता रहूंगा, मेरी कौम ज़ाये हो जाएगी, मेरी कौम मिट जाएगी। ये अल्लामा इकबाल का जुमला था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदाए पाक की कसम मेरे आंखों से तब तब आंसू बहने लगे। मैं तो तलाश कर रहा था मुसलमान कौम तुम में हीरा, मुझे तो कौम यहूद में हीरा मिला, मुझे तो कौम यहूद में हीरा मिला। मुझे आज जरूरत है, आज हम तालीमी तौर पर इतनी कमजोरियां, आज हम सिर्फ हमारी जो बच्चे और बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है, माफ करना, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर हमें चलाना आ रहा है। अगर हमारे पास कोई व्हाट्सएप आया, पता चला सोशल मीडिया से फलानी बच्ची इर्तिदाद की शिकार हुई, माफ करना मुसलमानों, मेरे पास सिर्फ एक मिशन है, मैं 100 आदमी पर इसको भेज दूंगा, इस 100 आदमियों पर इस वीडियो को मैं भेज दूंगा। उसके अलावा हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में सिर्फ हजरत थानवी को ही पता चला रहमतुल्लाह अलैह को कि फलाने शहर में इर्तिदाद की हवाएं फैल रही है। हजरत खुद वीराना शादी के बावजूद तहकीक के लिए उस इलाके में पहुंचे और हजरत का जुमला फरमाया, जब मैं खाने बैठता हूँ और सोता हूँ तो उस शहर में इर्तिदाद की हवाएं फैल रही है, अल्लाह की कसम मेरी भूख खत्म हो जाती है और सोते वक्त में सोता हूँ तो मेरी रात की नींद खराब हो जाती है। और आज हम गफलत के तौर पर सो रहे हैं। आज सिर्फ हम टोटल लगाते हैं कि 1 साल में इतनी बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हुई, लेकिन इसमें भी हज़रत मौलाना हुज़ैफा साहब ने बताया, आप अपनी बच्ची को चाहे लॉयर बनाए, अकाउंटेंट बनाए, इंजीनियर, पहले तो हम यही कहते हैं कि बच्चियों को इतनी तालीम की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरी चीज बतला रहे हैं। आप अपनी बच्ची को अगर पढ़ाना चाहते हैं, पहले मुसलमान बनाए, पहले मुसलमान और फिर इसको तालीमी इदारों में आप भेजना चाहे भेजें। आज जो बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है, अक्सर बच्चियों के बाप में हमने जब इस बच्चियों का इंटरव्यू लिया, हम सिर्फ ये जानते हैं कि मोबाइल को देखने में और गेम देखने में मेरी कामयाबी है, इसलिए मेरा जवान अपने घंटे इसमें सरफ कर रहा है। काश के तालीम में सरफ करता। मेरी जवान बच्चियां आज पढ़ने में बहुत आगे है बच्चों के मुकाबले में, और जब ये बड़ी डिग्री हासिल कर लेती है तो कहती है कि मेरे मुस्लिम कौम में मुझे कोई बच्चा मेरे लेवल का नहीं मिल रहा है जो मैंने डिग्री हासिल की है, क्योंकि मेरे जवान बच्चों से ज्यादा बच्चियां इस इल्मी मैदान में आगे बढ़ रही है। तो वो बिरादर वतन में अपनी हम जीवन साथी को तलाश कर रही है, क्योंकि हम जवान गय्यूर जवानों हम उस लेवल के नहीं बने जिसकी बुनियाद पर ये बच्चियां बिरादर वतन के अंदर अपनी जीवन साथी को तलाश कर रही है। तो हमें फिक्र, मैं अपनी आखिरी बात पर आ जाऊं, हमें फिक्र पैदा करने की जरूरत है। आज मुसलमान शादियों में लाखों रुपये खर्च कर रहा है, लाखों रुपये। आज हमारी मुसलमान की मालदारों की शादी, पहले तो भाई 2-5-10 लाख में शादी हो जाती थी, शायद पूरा मजमा गवाही देगा। आज मेरी शादी 50 लाख करोड़ रुपये, और फक्र के साथ कहते हैं कि मैंने अपनी बच्ची की शादी में 50 लाख खर्च की, और एक दूसरे के तकाबुल में आए हुए ये 50 ये खिला रहा है, मैं उससे ज्यादा खिलाऊंगा, इसलिए अगर 10 लाख का मंडप तैयार किया, मैं 25 लाख का मंडप तैयार किया। गय्यूर मुसलमानों, तुम भूल चुके हो अपनी हैसियत। 50 लाख शादी में खर्च करने वालों, आज मेरी जवान बच्ची और बच्चियों को मैं गैर मुस्लिम स्कूलों के हवाले कर रहा हूं, और उसके नतीजे आपके सामने। हमारे हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त आप भटकल आखिरी सफरों में हजरत का भटकल का सफर हुआ, हजरत मौलाना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से
मीडिया के आदमी ने एक सवाल किया कि आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे मसाइल दरपेश है, बहुत सारे मसाइल, उनमें से अहम मसला आपके सामने कौन सा है? हजरत मालिनिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला किताबों में छपा हुआ है, मीडिया में छपा हुआ है। हजरत मालिनिया साहब रहमतुल्लाह अलैह आज से कई साल पहले ये कह रहे थे, मुझे अपनी कौम की ज़हनी इर्तिदाद का खतरा है, अपनी कौम के यानी मेरे बच्चों की और मेरी जवान बच्चियों की ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद का खतरा है, और मुझे कोई टेंशन नहीं, दूसरे मसाइल वक्ती है, चाहे तलाक का मसला हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अकलियत का मसला हो, ये सारे मसाइल वक्ती है, हल हो जाएंगे, लेकिन मुझे जो फिक्र है मेरे इन बच्चों के ज़हनी और इर्तिदादी फिक्री इर्तिदाद का खतरा है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान कौन अगर मुझसे कोई पूछता है मुझे सदक़े जारिया के लिए कोई काम करना है, फरमाया अली मियां एक मदरसे में बैठकर बोरिया नशीन पर बैठकर कहने वाला इंसान ये कह रहा है अगर सदक़े जारिया के लिए कोई काम करना हो तो मुस्लिम स्कूल कायम कर, एक मुस्लिम स्कूल कायम कर, ताकि हमारे ये बच्चे इत्मीनान के साथ अपनी तालीम को हासिल कर सके, इर्तिदाद से बच जाए। जो मुसलमान कौम अगर एक एक शादी में 50 लाख खर्च करती है, अगर एक एक आदमी 10-10 लाख भी अपने शहर में बचा लेगा, एक साल में तुम्हारे शहर में बेहतरीन इस्लामिक स्कूल कायम हो जाएगा। लेकिन जो काम नहीं करने हैं, हम शिकायतें तो कर रहे हैं। मैंने अभी कहा अगर एक बच्ची इर्तिदाद की शिकार हो, लोग मजे ले रहे, लोग मजे ले रहे, एक एक आदमी 100-100 आदमियों पर भेज रहा है। काश कि मेरी रात की नींद हराम हो जाती कि मेरी एक बच्ची जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाली और मुसलमान के घर में पलकर बड़ी होने वाली आज इर्तिदाद की शिकार हो गई है, मेरी रात की नींद हराम हो जाती, और उसके बजाय आज मैं मजे ले रहा हूं। बहुत जरूरत है, मैं अपनी बात को तवील न करते हुए बहुत जामे और माने बाद हजरत मौलाना गुलाम साहब, हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानी ने आपके सामने पेश की है। 2-4 बातें मेरे ज़हन में थी, वो मैंने आपके सामने नकल कर दी। बस अल्लाह ताला सही माने में, अल्लाह ताला सही माने में हमें भी वो फिक्र अदा करे उम्मत मुस्लिमा की। हमें इसलिए कि आज गैरों के स्कूलों में भेजते हैं। अभी एक हाफिज साहब मेरे पास आए थे, कहा कि मौलाना मेरी बच्ची को एक गैर मुस्लिम के स्कूल में मैंने भेजा, मेरी बच्ची को एक प्रोग्राम में देवी का रोल अदा करने के लिए मेरी बच्ची ने घर आकर इसकी मां को बतलाया, मुझे फिक्र पैदा हुई। मैं स्कूल में गया और मैंने कहा कि मेरी बच्ची देवी का रोल अदा करेगी, मेरी बच्ची मुसलमान है, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। कहा कोई हरज नहीं, आपकी बच्ची देवी का रोल अदा नहीं करेगी, लेकिन आगे का जुमला अगर आप दिल पर लेकर जाओ तो आपकी रात की नींद। फरमाया हमारे पास तो मुसलमानों के 500,000 बच्चे, हम किसी से भी ये रोल अदा करवा लेंगे। आगे का जुमला इसी शहर के 2 वाकयात पिछले महीने का आपको नकल करूं। पिछले महीने हमारी एक सोसाइटी है, वहां से खुद एक बच्चा जब इस मदरसे में आया और कहने लगा कि मौलवी साहब आज तो मैंने एक स्कूल में जा रहा हूं, इस स्कूल में मेरे पास पूजा करवाई गई, मेरे सामने हाथ मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा किया गया, ये सारी शिरकिया काम, ये बच्चा मासूम बल साहब इनके वालिदैन को बुलाया और कहा कि आपको पता है कि आपके बच्चे ने आज रोज़ अदा किया, आपके बच्चे ने, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं माफ करना, इनके वालिदैन के पेशानी पर कोई भी नहीं आ रहा। हम लोगों ने खुद इनके वालिदैन को बुलाकर कहा, इनके वालिदैन के पेशानी ऐसे कोई, हम सब हमको पता चला, हमने कहा कि दूसरी मतलब ऐसा मत करना, बस ये जुमला है। और फिर उसके बाद हमारी बच्ची और बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है तो हम मारा मारा घर घर फिर रहे हैं। इन बच्चों की आप बचपन से लेकर इनके अकाइद को मजबूत करने की फिक्र करें, इसके जिम्मेदार वालिदैन भी है, मजबूत करने की फिक्र करें ताकि हमारे ये बच्चे इर्तिदाद के शिकार न हो। तो ये हालात है, हालात के बाद हम सबको बेदार होने की जरूरत है। अगर बेदार नहीं होंगे इससे भी खतरनाक दिनों को हमें देखना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको बेदारी पैदा फरमाएं और ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाएं और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।